welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. It's safe to say that in the next 2 months, every single day, we will be talking about election-related news from one of the many states which are going to the hustings. Today, we are talking about Uttar Pradesh. In fact, it's no secret that in western Uttar Pradesh, it's going to be a tough call this time around, especially for the ruling BJP. With its 97 seats, this region is crucial to any party's political fortunes, and this time on the back of a prolonged farmer agitation and a tie-up with the Jat party, the Rashtriya Lok Dal, Akhilesh Yadav and his Samajwadi Party are doing everything they can to unseat the BJP, which last time around, in the last assembly elections, had almost swept this entire region. Which is why, and Akhilesh Yadav's party knows that the farmer vote, the Jat vote, is a very crucial one in the western Uttar Pradesh region. Today, it is that vote that he was reaching out to when he took the Sankalp, declaring that anyone who inflicted pain on farmers and tormented them would be uprooted. This eye, of course, is on the significant farmer vote of Western UP, which goes to polls in phase 1 beginning on the 10th of February. The trick for the alliance, though, will be to counter the BJP's Ganna versus Jinnah attack. The BJP is at pains to underline how, while talking about Jats and farmers, the alliance in its first list of candidates has given preference to Muslims and even some candidates with a criminal background. The examples quoted to bolster this charge very significantly is of candidates who come from Kairana, Muzaffarnagar and Bulandshahr. हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में एक भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कोई किराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि Now, you heard Yogi Adityanath talk about how social justice is just a farce and how Samajwadi Party's real face has been exposed. What really was the insinuation there? It's very clear when you see the breakup of the first list that was announced by the alliance. And the 29 names announced from the region, the Samajwadi Party had 10 and the RLD had a total of 19 names. First, let's take a look at the SP's breakup. Of the 10 names declared, 6 are Muslims, 2 Brahmins, 1 Dalit and only 1 Jat. Now let's take a look at the breakup of the 19 names that were announced by the RLD. The names declared have 4 Jats, 3 Muslims, 1 Brahmin, 5 Dalits, 3 Thakurs and 2 Gujars. Which is the reason why the question being asked is, are the BJP and Yogi Adityanath bringing up Akhilesh Yadav as a Jinnah Premi? Those were the words used by the Chief Minister, only in order to divide the farmer vote along Muslim and Jat lines. Has the SP and RLD, through their ticket distribution, given the impression or sent out the message that eventually they have to fall back on their Muslim vote bank? And what will be the recurrent theme in this battle for western Uttar Pradesh? Is Akhilesh Yadav's Anna Sankalp going to help unite farmers across lines of caste and religion? Or is Yogi Adityanath's Sankalp against Jinnah Premis going to hold sway? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Waris Pathan, national spokesperson of the AIMIM, is joining us along with Pawan Agri, national spokesperson of the RLD, Anurag Bhadoria, national spokesperson of Samajwadi Party. My first question is to you, Sanju Verma, national spokesperson of the BJP.
why do you keep bringing up today? Akhilesh Yadav took the Anna Sankalp. Why did you, while addressing that, call him a Jinnah Premi? Is it to keep drawing up that Jinnah Ganna parallel and divide along lines of religion? You know, Padmaja, I am actually quite flummoxed by the hypocrisy of political parties like the SP and RLD, which keep polarizing the narrative, keep bringing up the likes of Jinnah. In fact, Akhilesh Yadav at one address recently put Jinnah, Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru for whatever it is worth on the same platform. So I think the problem is not with the BJP. The problem is with the Samajwadi Party. For instance, look at their senior leader, S.T. Hassan. He has categorically said that, they want a Muslim chief minister or deputy chief minister. Look at their senior leaders from Sambhal, like Shafiqur Rahman Bhatt. He has made no qualms about the fact that he is a hardcore, radicalized Islamist. And he actually says that Talibanis are like Indian freedom fighters of the year, like, say, Bhagat Singh, for instance. So I think if anyone is communalizing the electoral narrative at this point in time, it is the Samajwadi Party and their so-called members of the Rainbow Coalition, which they are trying to cobble together. The BJP has always said it will fight this election on you are referring to past comments of S.T. Hassan. Today Akhilesh Yadav said, हम तो अन्न का संकल्प ले रहे हैं, हम जिन्ना विन्ना कुछ नहीं कर रहे, हम अन्न के नाम पे वोट मांगेंगे. तो आप जिन्ना क्यों ले? Padmaja, that's a fair point. Akhilesh Yadav can say what he wants to say. The fact is, कैराना से किसको खड़ा किया है, किसको उतारा है समाजवादी पार्टी ने? Nahid Hassan. It's not because he's a Muslim, but the fact is, this man is a known gunda, has 17 cases registered against him in Shamli and in Kairana. Whom have they, decided to give a ticket from Bulandshahr? It is Haji Yunus, again a known gunda. So the fact is, अन्न के नाम पर वोट मांगते हैं, ये भाषणों में लाल टोपी वाले कहते हैं. जमीनी हकीकत ये है कि गुंडे मवालियों को और जिन लोगों ने सांप्रदायिकता को अपना जामा बना लिया है, इन लोगों को ये लोग लेजिटिमाइज करते हैं. जी, यदि इतना ही आपको अन्न के ऊपर वोट मांगना है, चेंज अनुराग भदौरिया आज आपकी बातें सुनकर हंस रहे हैं. नाम अन्न का और वोट जिन्ना के नाम पे. मुझे हंसी इस बात की आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितना फ्रस्ट्रेटेड हैं. उनके चेहरे पे जैसे ना हार एकदम उनके चेहरे पे दिखाई पड़ रही है. बात यहाँ असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते. भाई ये जो जिस बातों की ये बात कर रही है, ये लास्ट एक साल से यही बात रिपीट कर रही है. यही बात मैं पद्मजा जी आपसे कितने शो कर चुके हैं. यही गिनी चुनी बातें, ये एसटी हसन, ये वो. अरे भैया, वोट यहाँ महंगाई पे होगा, आप भूल गई हैं. बेरोजगारी पे होगा, महिला अत्याचार पे होगा, जो किसानों को रौंदा गया उस पे होगा. 700 किसान मारे गए हैं जिनकी मौत हुई है आपकी नाकामी की वजह से, गलत फैसले. नहीं तो आज की बात कीजिए ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. आज पे बात करते हैं. तो आज की ये बात बता दीजिए अनुराग जी कि 29 नाम आपने डिक्लेयर किए हैं. 29 में से सिर्फ 5 जाटों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसान और जाट वोट आपको चाहिए था, 5 जाट को आपने टिकट दिए हैं. 5 जी, 2 पार्टी में मिला के. अनुराग जी, अरे हमें भी मौका दीजिए. जितना आपने मैं आपको पूरा जवाब दूंगा, बोलने दीजिए. मैंने कहा कि इनकी तो हालत ये है, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है कि मुख्यमंत्री के ऊपर संगीन मुकदमे थे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए. और अपने ऊपर से मुकदमे हटाने का काम किसने किया है? खुद मुख्यमंत्री ने. आप बताइए, इसका जवाब है. डिप्टी सीएम के ऊपर में कितने आपराधिक मुकदमे थे? किसने अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाए? और जब हमने इस पे बात की तो आपने क्या बोला? अरे राजनीतिक होते हैं, ऐसे ही राजनीतिक मुकदमे होते हैं, दूसरों के मुकदमे राजनीतिक. अरे आप आज की बात तो कर लीजिए अनुराग जी. आज की बात कर रहा हूँ अनुराग जी. 10 आपने 10 नाम डिक्लेयर किए, 1 जाट को दिया आपने टिकट. नहीं, 1 आउट ऑफ 10. अनुराग जी, सुनने तो दीजिए, बोलने दीजिए. ये तो पास मार्क्स भी नहीं है, पास होने के भी 40% चाहिए होते हैं. आपने तो 10 में से 1 बेचारे जाट को दिया टिकट. क्यों? पद्मजा जी, पहली बात तो आपका शब्द गलत है. जाट कभी बेचारे नहीं होते हैं, ये अंदाज लगा लेना. जाट बेचारे होते तो आज सरकार को पानी नहीं पिला देते. अरे बेचारे वो हैं जो कि टिकट का इंतजार करते रह गए. आप बेचारा मत बोलिए उनको. आपने गन्ना
और बेचारा अन्न के समझती नाम थी। पर उनको एक टिकट दिया। अरे सुन तो लीजिए, यही बेचारा No, no, समझती Padma थी। Jaat cannot be a आरएलडी ने this man. समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन No, no, है। okay, let him please finish. Sanju Verma, if we both of us will keep talking over him, it's not fair to Anurag Bhadoria. But आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, अनुराग जी, विनम्र निवेदन है, आज की बात कीजिए, अन्न का संकल्प लेते हैं और अन्नदाता या जाट को एक टिकट देते हैं। हाँ, लेकिन बहुत मेरा आपसे नाइंसाफी है। सुनते रहे, मेरा आपसे निवेदन है कि जाट को बेचारा मत बोलिए। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, दोनों ने मिलकर टिकट दिए हैं, इसलिए आप अलग अलग मत बांटिए। ये बीजेपी की पॉलिसी है, हम गठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ने मिलके कितने टिकट दिए हैं? कोई फर्क दोनों ने मिलके कितने टिकट दिए हैं? सबसे हम दोनों लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। दोनों में फर्क नहीं है ना, आप सच बोल रहे हैं, दोनों में फर्क नहीं है। संजू वर्मा, जस्ट सेकंड बिफोर आई कम बैक टू यू, आई रियली मस्ट ब्रिंग इन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों में फर्क नहीं है। और फर्क इस बात का भी नहीं है कि आपने, पवन जी, 19 नाम आपने डिक्लेयर किए, 4 जाट प्रत्याशियों को टिकट दिया है, क्यों? बिल्कुल, मैं आप तो आपको पार्टी जाटों की है। एक मिनट में मैं आपको 4 ही लोग मिले आपको। चाहूंगा, मैं आपको एक जवाब देना चाहूंगा। हमारी चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है में पड़ गए आप, जिसने कि हिंदुस्तान के अंदर जातीय भावना से ऊपर उठकर हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया था। आज किसानों के अंदर मुस्लिम भी हैं, हमारे जो दलित भाई भी हैं, कामगार भी हैं, अन्य लोग भी हैं। सिर्फ जाट ही केवल किसानों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। यदि हम सारे जाटों को टिकट देते तो आप ही लोग और भाजपा के लोग हम पर आरोप लगाते कि आप जाति राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल जाटों की राजनीति करता है। जब हम जाटों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, अन्य वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, मुस्लिम को भी प्रतिनिधित्व दे रहे हैं जो, और इस वक्त हम जब गठबंधन में बैठकर हमने सारी सीटों को डिसाइड किया है, तो आप सारी सीटों पर हमारा जातीय गणित देखिए, हमारा जातीय गणित देखिए। हमने हर वर्ग को अच्छा, जातीय गणित में किसान भी है, कामगार भी है, मुसलमान भी है। उसके मुद्दे पे मैं एआईएमआईएम के पास जाऊंगी, बट जल्दी से आप इसका रिस्पॉन्ड कीजिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये है एसपी और आरएलडी की लिस्ट का मतलब। संजू वर्मा, Padmaja, the fact of the matter is that in the list that was declared by the BJP, 60% of those, please अभी अनुराग जी आपका चुप हो जाइए, आपको बहुत मौका मिला, आपने सब बेवकूफी बातें की, अभी अपना थोड़ा मौन व्रत रखिए और दूसरे को बात करने दीजिए। पद्मजा, may I please? ओके, 1 by 1 आप पे वापस आ रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। Yeah, I don't want to be heckled by him. Thank you. Padmaja, I always believe that the proof of the pudding is in the eating. The fact of the matter is that in the list declared by BJP last week, 60% of those who were given tickets are from OBCs. We announced 10 women candidates. We also announced the names of intellectuals and professionals. हमारे यहाँ पर बीजेपी में कानपुर के एक्स पुलिस कमिश्नर असीम अरुण जैसे लोग लड़ेंगे चुनाव। और समाजवादी पार्टी इट इज फ्लर्टिंग विद हूम? इट इज फ्लर्टिंग विद द लाइक्स ऑफ ओपी राजभर, जिनके अगेंस्ट पता नहीं 40-50 क्रिमिनल केसेस हैं। समाजवादी पार्टी इज ट्राइंग टू लेजिटिमाइज हूम? इट इज ट्राइंग टू लेजिटिमाइज गूंज लाइक मुख्तार अंसारी। समाजवादी पार्टी इज ट्राइंग टू लेजिटिमाइज हूम? इट इज ट्राइंग टू लेजिटिमाइज गुंडाज लाइक नाहिद हसन। समाजवादी पार्टी इज ट्राइंग टू लेजिटिमाइज हूम? इट इज ट्राइंग टू लेजिटिमाइज गुंडाज लाइक हाजी यूनुस। अनुराग भदौरिया यहाँ पर आकर भाषण दे सकते हैं, बट 10 मार्च को इनके मुंह पर जो हंसी है वो गायब हो जाएगी। देखिए पद्मजा जी, सोचिए कितनी शर्म की बात। वारिस पठान, क्या आपके डर से, एक सेकंड, आपके डर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दोनों ने मिल करके, समाजवादी पार्टी, आरएलडी ने मिल करके मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिए हैं? 5 सेकंड आप बोलते नहीं ना अनुराग जी, अभी वारिस पठान 15 मिनट से बैठे हुए हैं चुपचाप, उनको तो बोल तो लेने दीजिए। खत्म कर दूंगा 5 सेकंड में। पद्मा जी मानिए मेरी बात। नहीं, आप नहीं करेंगे। वारिस पद्मा पठान जी, को बोलने का मैं मौका सबकी दीजिए। बात सुन रहा था। अनुराग जी 5 सेकंड रुक जाइए।
पद्मा जी, ओके, वारिस पठान। पद्मा जी, मैं कब से सबकी बातें सुन रहा था। मैं दो विषय पे मैं बात करूंगा। एक तो हमारे किसान भाइयों के ऊपर बात करूंगा और किसके पास कितने सारे गुंडे हैं उनकी भी बात जरा करना बहुत जरूरी है। अब किसानों के मुद्दे के ऊपर जो किसान बिल निकाला था मोदी जी ने, कितना जिद्दी हो गए थे मोदी जी के, नहीं मैं इस बिल को वापस लूंगा ही नहीं, जिसकी वजह से 700 हमारे किसान भाइयों की जानें चले गई। इसका जवाबदार तो मोदी जी है। अब वहीं पर किसानों को टेनी के लड़के ने कॉन्स्पिरेसी के तहत थार गाड़ी लेके चले गए और हमारे बेकसूर किसानों का कत्ल कर दिया। एसआईटी का रिपोर्ट है, चार्जशीट फाइल हो गई, मगर टेनी आदमी मलाई खा रहे हैं मोदी जी के साथ बैठ के, उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि वो ब्राह्मण है। अगर उनको निकाल दिया तो मोदी जी के ओबीसी वोट तो गए, अभी ब्राह्मण वोट भी चले जाएंगे, तो इस वजह से उनको नहीं निकालता। तो कास्ट पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स तो इनका फोर्टे, इनको मास्टर है उसके अंदर। दूसरी तरफ आप देखिए समाजवादी वाले, आप समाजवादी वाले बेटे अनुराग जी बड़ी बात कर रहे थे, मेरे अच्छे मित्र, मैं उनको बोलना चाहूंगा अनुराग जी, सुनील सिंह को तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। सुनील सिंह ने क्या कहा था कि मुसलमान की औरतों को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार करो। आज जाके अखिलेश साहब की गोद में बैठ गए वो, तो दूध के धुल गए वो। उसके बाद मौर्य साहब जो छोड़ के गए, ओबीसी के इतने बड़े जो नेता थे जो बीजेपी छोड़ के चले गए समाजवादी में, उन्होंने क्या कहा था कि मुसलमान इंसान शादी करता है 3-4 अपनी हवस मिटाने के लिए। आज वो आपके पास चले गए तो समाजवादी तो बन गया एक वॉशिंग मशीन, जो भी उसमें आता है धुल जाता है। और दूसरी बात, बीजेपी की आप भी फिलहाल जो असेंबली था उसमें संजू वर्मा जी, 140 क्रिमिनल्स थे आपकी सरकार के अंदर जिनके ऊपर संगीन केसेस थे, बलात्कार, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, हर तरह के केस उनके पास थे। तो दोनों पार्टी तो एक ही जैसी है, मगर आप लोग कोई भी विकास की बात करने में नहीं मानता। When will they speak about development? When are they going to talk about the people who have lost their jobs? Allow me to make my point. This is not proper. Crores of youths in Uttar Pradesh have lost their job. Who is responsible for that? Who is responsible for the corpses which we saw floating on the river Ganges? Before you start sparring with each other, I think एक इल्जाम लगा है समाजवादी पार्टी के ऊपर, आप जवाब दीजिए AMIM का। आप सिर्फ वोटों के लिए दोहन करते हैं मुसलमान समाज का, अनुराग भदौरिया। विकास कुछ नहीं होता, जहां पर जीतना होता है वहां पर टिकट देते हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए हमारे हिंदू भाई को भी टिकट दिया और हमको यकीन है कि वो भी जीतेगा हमारी इससे। हमको हमारे हिंदू भाई बहन भी वोट देंगे। पद्मजा जी बोलो, पद्मजा जी अगर आपका ये बताइए, बीजेपी के बोलिए अनुराग जी, बोलिए। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता कह रही थी कि कमिश्नर, कानपुर के कमिश्नर ने ज्वाइन किया। अरे पद्मजा जी आप भूल गई हैं, इनकी सरकार में एक आईपीएस फरार है, यहाँ 2 साल हो गए अभी तक नहीं पकड़ पाए। तो आईपीएस मतलब क्या अच्छा हो गया? और आईपीएस ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरा है। वो आईपीएस 5 साल तक आपके लिए काम करता रहा, एजेंट के रूप में काम कर रहा था। मुद्दे की बात कीजिए ना, किधर पे जा रहे हैं? अब हम 1000 दिशाओं में अलग अलग जाएंगे। प्लीज, दिस इज नॉट अबाउट असीम अरुण, टॉक अबाउट द इशू। आपकी पहली लिस्ट की बात कर लीजिए प्लीज अनुराग जी। तो पद्मजा जी कहूंगा, मैं तो पद्मजा जी कहूंगा, ऐसे आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर जो रिजाइन करते हैं उनको 5 साल तक कम से कम किसी पार्टी को ज्वाइन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अभी नहीं है, वो डिबेट नहीं है। करेंगे तो न जाने कितने निर्दोषों को सजा दे देंगे। इसलिए अनुराग भदौरिया, ये डिबेट नहीं है। आप असीम वकार की बात कीजिए ना। आप एक सेकंड, आप प्लीज वारिस पठान जी का जवाब दीजिए। वो आपसे साफ साफ कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अभी आपको कन्वीनियंट लग रहा है, आपको वेस्टर्न यूपी में कन्वीनियंट लग रहा है तो आप टिकट दे रहे हैं। मतलब की है राजनीति आपकी। तो पद्मजा जी सुनिए तो जरा, हमें देश की बात कर लेने दीजिए कि एक आईपीएस ऑफिसर 5 साल तक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करता रहा, न जाने कितने निर्दोषों को फंसाया होगा उसने, क्योंकि वो उसको पता था कि आचार संहिता कि हम रिजाइन कर देंगे। इसके मतलब इस संविधान में मैं तो कहूंगा सरकार को, चुनाव आयोग को। एक सेकंड, अब हम फिर से वो गोल गोल जलेबी बनानी शुरू हो गया। अनुराग जी, आपको पता है ना, आप डिबेट पे आने से पहले आपको बहुत साफ साफ टॉपिक बताया जाता है, पर आप आके वही बोलते हैं जो आपकी स्क्रिप्ट होती है। लेट मी प्लीज अगेन गेट इन वारिस पठान, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू कैन नॉट रन विद द हेयर एंड hunt with the hounds. If you are, just a second, on the one hand you have the BJP attacking Samajwadi Party saying they are giving tickets to more Muslims than Jats. You are attacking them saying, oh, this giving tickets to Muslims means nothing at all. The fact of the matter is, in all of their major seats, Kairana, Kithor, Meerut, Dhaulana, Kol, Aligarh, the Samajwadi Party has gone with their loyal vote bank, which is going to make things very difficult for you if you plan to make inroads in Western UP.
Well, let me tell you, let me bring certain facts and data before the nation and before your audience, Padmaja. The data says that 70 years the so-called secular parties ruled UP. What is the present position of the Muslims in Uttar Pradesh? Only 5% are employed in state government. There are about 25 crore Muslims. What are they getting? 21 crore rupees of budget from the central as well as the state government. So when will they develop? The Muslims are socially, economically, educationally backward in Uttar Pradesh. And who is responsible for that? This so-called secular parties. I don't say this. There are committees reports. Achar committee report suggests so. Mahmoodur Rahman committee suggests that Muslims of Uttar Pradesh are socially, economically backward than the Dalits. Now, who's responsible for that? And so now when we are going for the empowerment of the Muslim, we say that this time we are sure that the Muslims of Uttar Pradesh will definitely vote for us. ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है. We want our stake in the politics of Uttar Pradesh. हमारा भी कोई हिस्सा चाहिए political empowerment of Muslims. Why should it not happen? मुसलमानों का वोट मिलेगा. एक सेकंड, कैन आरएलडी प्लीज कम इन. एक तरफ एआईएमआईएम है, एक तरफ बीजेपी है. पवन जी, पवन आगरी जी. एक तरफ तो आप बारिश जी कह रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमें बराबरी का हक चाहिए. यदि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को, यदि ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन यदि उनको टिकट दे रहा है तो उस पर फिर आपत्ति क्यों? आपकी आपत्ति किस बात पर है, मैं ये जानना चाहता हूं. और रही बात आप अभी जो आपत्ति है, जो कह रही थी बार-बार मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा, मुसलमानों का शोषण किया गया है, अपीसमेंट नहीं हुआ है. मुसलमानों का अपीसमेंट नहीं, शोषण किया गया है आपके राज्य में. फिर वही माहौल पैदा करना चाहते हैं, फिर वही माहौल पैदा करना चाहते हैं. आप वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं. मैं बताना चाहता हूं आपको, साहब मुसलमान आज क्यों पिछड़ा हुआ वर्ग उत्तर प्रदेश का, चलिए जवाब दीजिए मुझे. किसान बताइए, हम तो नहीं लड़के ना वहां पे जाके इतने जागरूक हो चुके हैं, पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं. अब कोई भी किसी की बातों में आने वाला नहीं है. जागरूक होना भी चाहिए. हो रहा है हमारी राष्ट्रीय लोकदल नहीं आने वाला 100% जो भी गठबंधन हुआ है. अरे वहां पर गठबंधन हुआ है, चाहिए लोगों को विकास चाहिए. पेट्रोल डीजल गैस के जो भाव बढ़ गए हैं, वो लोग चाहते हैं कि उसको कम कर दिया जाए. Okay, this is going to be a recurrent theme in the coming days of the binary between Jinnah and Gannah, of the Jat vote and the Muslim vote. Fortunately or unfortunately for each party, there are multiple takers, multiple claimants to each one of these vote chunks. I'm going to thank all of you and Sanju Verma because we have an important guest joining us right now. When we're talking about the farmer vote, you have these farmer groups, the Bharatiya Kisan Union prominent among them, where you had Naresh Tikait yesterday asking for all his followers, all his Khaps to vote for the SP-RLD combined, did a quick turnaround this morning. Could it have anything to do with the meeting that he had with a union minister, Dr. Sanjeev Balyard?